Welcome back to Pradhyan Education. I am Sneha Shah, your tutor. We've already completed chapter number 10 and 11 circles and areas related to circles, जिसके playlists का link आपके description में है. Just go through the description and watch those videos. Also, you can download the notes and solutions of those two chapters from the videos of those chapters. So please go back to the videos, revise them, watch them again and come back again to learn this chapter. In this chapter, we have already completed the introduction part. I have given you the table of formula, how to memorize them, and now we are going to solve exercise 12.1 today. So without wasting time, let's go ahead. So going ahead with exercise 12.1, question number 1. The question is, two cubes each of volume 64 cm cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. As you can see, here there are two cubes that are joined end to end. So ये cubes को join करके हमने एक cuboid बनाया है. हमें find करना है resulting cuboid का surface area. तो अब हमें volume of cube दे रखा है 64 cm cube. ठीक है, therefore we know कि x cube is 64 cm cube. इसका जो side होगा, मतलब let's say this edge of the cube, उसका cube is 64 centimeter cube. So x is equal to 4 centimeters because cube root of 64 is 4. 4 4s are 16, 16 4s are 64. That is how cube root of 64 is 4, and that is why the edge of the cube is 4 centimeters. तो जब ये दोनों साथ में होंगे तो what will be the total edge of the cuboid that is formed? It will be 8 centimeters, right? और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो सारे हैं, दिस इज ऑल्सो x विच इज़ 4, दिस इज ऑल्सो 4, मतलब ये क्या हुआ, ये हो गया ब्रेथ ऑफ द लेंथ आपका आ गया 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ एज यू कैन सी इट इज़ 4 सेंटीमीटर, एंड एज यू कैन सी द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर्स. सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला अप्लाई करना है. सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? वो होता है L 2 times LB plus BH plus HL. As we have simple values, I am not going to do the entire sum, but I will just give you the answer. 160 centimeter square. Simply आपको क्या करना है, 2 into length is 8 into 4 plus 4 into 4 breadth and height plus 4 into 8. So this will give you 2 into 8 4s are 32 plus 16 plus 32. When you solve this, you will get the answer as 160 centimeters square. Therefore, the surface area of the resulting cuboid is 160 centimeters square. Let's read the question. A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by, as I said, mounted by मतलब mount किया हुआ उसके ऊपर. Hemisphere is mounted by a cylinder, मतलब cylinder top पे है. When we say कि हेमिस्फीयर इज माउंटेड ऑन अ सिलेंडर, तो वो होगा कि सिलेंडर नीचे है और हेमिस्फीयर ऊपर है. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दीज टर्म्स. द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर्स. डायामीटर इज 14, तो रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर्स. एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट मतलब सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर का टोटल हाइट इज 13 सेंटीमीटर्स. फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. इनर सरफेस एरिया मतलब जो आपको सरफेस पे दिख रहा है. दिस टॉप पोर्शन, टॉप ऑफ हेमिस्फीयर इज नॉट काउंटेड एज द सरफेस एरिया बिकॉज इट इज हॉलो. तो ये नहीं है, तो सिर्फ जितना जो आपको दिख रहा है, मतलब कर्व्ड पोर्शन ऑफ सिलेंडर, ये इसको इमेजिन एज 3D इमेज. तो कर्व्ड पोर्शन ऑफ द सिलेंडर एंड द कर्व्ड पोर्शन ऑफ द हेमिस्फीयर. सो बेसिकली आपका सरफेस एरिया क्या होगा, एज यू कैन सी फॉर हाइट ऑफ सिलेंडर टोटल हाइट 13 है और इसका रेडियस क्या है 7, तो सिलेंडर का हाइट क्या आएगा 13 minus 7 6 सेंटीमीटर्स. दैट यू हैव टू मेंशन इन योर आंसर कि आपने वो 6 सेंटीमीटर्स कैसे ऑब्टेन किया. नाउ वी डायरेक्टली गो टू द सरफेस एरिया पार्ट विच इज नथिंग बट CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर. सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 pi RH प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 pi r square. नाउ
डोंट गो फॉर पुटिंग द वैल्यूज राइट हियर। देखो कि दो टर्म्स हैं तो उनमें से क्या कॉमन क्या है। सो आई कैन सी कि 2 पाई आर इज कॉमन, what is left in is h plus only r, तो this makes your calculations much easier, ठीक है। so 2 into if you are given कि आपको 3.14 यूज़ करना है पाई का वैल्यू तो ही करो, अदरवाइज आपके जो वैल्यूज़ होंगे दूसरे जैसे रेडियस है या हाइट है दे विल बी इन मल्टीपल्स ऑफ 7 टू मेक योर कैलकुलेशंस ईजी। तो यहाँ पे रेडियस ही 7 है तो पाई तो 22/7 ही लेना है। हाइट आपका है हाइट ऑफ सिलेंडर, वी आर टॉकिंग अबाउट हाइट ऑफ सिलेंडर, तो टोटल हाइट दी किस लिए थी ताकि हम सिलेंडर की हाइट फाइंड कर सके। सो डोंट कंफ्यूज इट कि हमें 13 यूज़ करना है, नहीं, हम जब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कर रहे हैं तो उसी का हाइट यूज़ करेंगे। तो इट इज़ 6 प्लस रेडियस इज 7, सो दिस गिव्स मी 2 into 22 into 13 which is equal to 572 centimeter square. So the surface area of the given vessel or the inner surface area of the given vessel is 572 centimeter square. Moving on with question number 3, let's read out the question. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeters surmounted on a hemisphere. Mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy from the top of the cone to the end of hemisphere, the total height is 15.5 centimeters. Find the total surface area of the toy. Total surface area मतलब CSA of cone और CSA of hemisphere, जितना दिख रहा है उतना ही। टोटल हाइट इज 15.5 और इसका रेडियस इज 3.5, तो ऑब्वियसली इस हेमिस्फीयर का ये पोर्शन भी 3.5 होगा विच इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कोन? द परपेंडिकुलर हाइट इज 12 centimeters, 15.5 minus 3.5, you get 12 centimeters. Clear? Now for surface area of the cone आपको required क्या है? What is the surface area of cone? Curved surface area of cone क्या होता है? It is pi r l. Slant height आपको दी है slant height? नहीं, but आपके पास क्या है? You have radius, you have height. तो आपको slant height using Pythagoras theorem find करनी पड़ेगी. Let's go for it. H is 12 centimeters और R is 3.5 centimeters. So this is equal to 144 plus 12.25. 144 plus 12.25 is 156.25. With decimal it will be 12.5 centimeters. Because ये upon 100 है तो वो नीचे square root पे upon 10 होगा. So 12.5 centimeter आ गया हमारा L. Now simply we have to find the surface area. Surface area is CSA of cone. Total surface area of the entire toy is CSA of cone plus CSA of hemisphere. This is equal to pi r l plus 2 pi r square. Pi r common, l plus 2r. Pi is 22/7, radius 3.5 मतलब 35/10 ही लिखना. Then L is 12.5 plus 2R is 7. So I get 11 into 19.5. This is 214.5 centimeters square. So now let's read question number 4. A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have and find the surface area of the solid. एक बॉक्स है, क्यूब बॉक्स है, 3D में इमेजिन करो इफ़ यू कैन सी दिस प्रॉपरली। ये एक बॉक्स है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया गया है, उसके टॉप सरफेस पे हेमिस्फीयर को उल्टा रख दिया गया है इस तरीके से, ठीक है। तो ये बोला है कि वो हेमिस्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर क्या होगा ताकि वो उसके टॉप से बाहर ना जाए, ठीक है। तो आप ये वाला जब मैंने ड्रॉ किया है वो पोर्शन समझो कि दिस इज़ द टॉप ऑफ द बॉक्स जो स्क्वायर फॉर्म में रहेगा और उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा है जिसका बेस इज सर्कुलर इन शेप, करेक्ट। तो वो मैक्सिमम कितना डायमीटर का हो सकता है
तो वो जितना एज होगा क्यूब का उतना ही उसका मैक्सिमम डायमीटर होगा, ऑब्वियस है, अदरवाइज वो बाहर चला जाएगा इफ इट्स नॉट इक्वल टू द एज ऑफ द स्क्वायर और द टॉप ऑफ द क्यूब. So the maximum diameter that the hemisphere can have is 7 centimeter. So diameter maximum हो सकता है 7 centimeter, तो radius हो गया 7/2 centimeters. Please never forget to convert diameter into radius, otherwise आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा. अब हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. एज यू कैन सी कि ये जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन वो होगा ही नहीं सरफेस में, बिकॉज इट विल गेट कवर्ड बाय द स्फेरिकल पार्ट. तो क्यूब के टॉप का कितना पोर्शन कवर करना है हमें, ये जो इधर शेडेड जो है वो उतना. और हम जब क्यूब का सरफेस एरिया लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया, तो वो 6 साइड्स का आएगा, करेक्ट, 6x². पर उसमें से तो बेस का एरिया तो कम हो रहा है बिकॉज ओवरलैप कर रहा है, तो वो बेस काटना पड़ेगा हमें. सो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड? इट इज़ नथिंग बट सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, टोटल सरफेस एरिया 6x² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, जो उतना ऊपर का पोर्शन जो बढ़ जाएगा वो, माइनस दिस, क्योंकि जो 6x² में लिया है वो पूरे टॉप का एरिया आ रहा है, बट हमें उसमें से इतना सर्कुलर पोर्शन निकालना है बिकॉज इट इज़ नॉट एज अ पार्ट ऑफ द सरफेस एनीमोर. ठीक है, तो सरफेस एरिया जो सॉलिड का हमें फाइंड करना है वो होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर. समझ में आ रहा है? सो दिस इज इक्वल टू TSA ऑफ क्यूब इज 6x² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr² and the area of base is πr². That is equal to 6 into 7². हमारा edge of the cube is 7 plus ये 2πr² minus πr² is giving me plus πr², which is nothing but 22/7. Radius is 7/2, 7/2. This is 6 into 49 plus 77/2. Whatever the answer is the answer to your question कि surface area of the remaining solid or the formed solid. Clear? Now question number 4 जैसा ही है, very simple. 4 में क्या था, वो हेमिस्फीयर ऊपर रखा हुआ था उल्टा. अब इसमें क्या किया है, उतना हेमिस्फेरिकल पोर्शन काट दिया है from a solid cube. Let's read the question. A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter of the hemisphere is equal to L, that is the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. इसमें किया क्या है कि ये imagine this as a solid cube, भरा हुआ पूरा, उसमें से एक डीप कट करके एक हेमिस्फीयर को रिमूव कर दिया गया है. मतलब अगर सपोज ये पूरा सरफेस है क्यूब का, ये पूरा दिस इज द सरफेस ऑफ द क्यूब, फिर यहाँ से एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन निकाल दिया गया है. तो इफ़ यू कैन इमेजिन कि ये सरफेस एरिया बढ़ रहा है. आई यू अंडरस्टैंडिंग कि ये जब फ्लैट था, सपोज सी अगर ये फ्लैट है तो ये सरफेस एरिया कैसा है, कम है. बट इफ़ आई चेंज दिस टू दिस, तो इसके पास सरफेस बढ़ जाता है. If I extend this, इसको if I open it, तो it will be a longer line than it was earlier. समझ में आ रहा है? तो जब भी कोई भी रीजन कर्व्ड होगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा. सिंपल है. सो ये पिछले क्वेश्चन जितना ही जैसा ही है, इसका पूरा डायमीटर इज L और एज इज L. तो आपको आंसर भी पाई के टर्म्स में ही फाइंड करना है. यू डोंट हैव टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ पाई. तो सिंपल रहेगा कि एरिया ऑफ सॉलिड जो बचा है उतना सॉलिड का इज इक्वल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज 6x² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² माइनस एरिया ऑफ बेस πr², क्योंकि यहाँ से पूरा बेस तो कट ही जाएगा. समझ में आ रहा है? So this is equal to 6x² plus
पाई आर स्क्वायर मतलब पाई इंटू L/2 का स्क्वायर और यहाँ पे L स्क्वायर। सो सॉल्व दिस, ईजी है। 6L स्क्वायर प्लस, क्योंकि L का वैल्यू नहीं दिया है वी विल नॉट पुट द वैल्यू ऑफ पाई एज वेल। सो पाई इंटू L/L स्क्वायर बाय 4, दिस इज गिविंग मी 24L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन 4। नाउ आई टेक आउट L स्क्वायर बाय 4 कॉमन एंड अंदर रह जाएगा 24 प्लस पाई। दिस इज माई फाइनल आंसर। इफ यू राइट इट लाइक दिस देन ऑल्सो इट इज फाइन, बट हो सके तो सिंप्लीफाई करना प्लीज। So now moving on with question number 6, let's read it. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispherical ends. This is a cylinder with two hemispherical ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the radius or the diameter of the hemispherical part is 5 mm. पूरे कैप्सूल का diameter is 5 mm. तो हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। ना आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। ऑफ कोर्स इट इज़ एप्लीकेबल। हमें क्या करना होता है प्रैक्टिकली, ये एक एग्जांपल समझो कि मेडिसिन का एक छोटा सा कैप्सूल है, वो कैसे डिज़ाइन होता है कि उसमें कितना कॉम्पोजिशन जाएगा, कितने ग्राम कौन सा केमिकल यूज़ होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसका साइज़ डिसाइड होता है कि मोर द कंटेंट मोर ग्रेटर इज द साइज, ठीक है। अब उसका साइज डिसाइड होता है डिपेंडिंग ऑन द रेडियस, द डायमीटर, द विड्थ कितना रखना है, द लेंथ, वो सब डिसाइड होता है। फिर हमें सरफेस एरिया की क्या ज़रूरत है, तो ये तो वॉल्यूम में आ जाता है, कंटेंट तो वॉल्यूम में आता है, बट सरफेस एरिया क्यों चाहिए? फॉर इट्स पैकेजिंग। पैकेज कैसे करना है उसको, उसके स्ट्रिप्स कैसे बनेंगे, एक कैप्सूल के लिए कितना गैप चाहिए इन अ स्ट्रिप, वो सब डिज़ाइन करने के लिए ये सब यूज़ होता है। सो दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग टू यूज़ इन डे टू डे लाइफ। सो इफ़ यू थिंक कि आप जो पढ़ रहे हो वो कोई काम का नहीं है, ऐसा नहीं है, इट इज़ इन यूज़, बट येस व्हेन यू ग्रो अप यू विल रियलाइज़ कि ये पूरा सिस्टम एक कंप्यूटराइज तरीके से अब होता है, पहले तो मैन्युअली ही करते थे लोग, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट अंडर एस्टिमेट कि ये सब पढ़ के क्या करेंगे। ऑफ कोर्स इट विल कम टू योर हेल्प एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ, ठीक है। तो एक कैप्सूल है, पूरे कैप्सूल का लेंथ इज 14 mm, mm इज मिलीमीटर, और रेडियस डायमीटर है उसका 5 mm, तो रेडियस हो गया 5/2 mm। और अगर ये लेंथ पूरे का 14 mm है तो ये सिलेंडर का कितना होगा, दोनों तरफ से हम हेमिस्फीयर के रेडियस को माइनस कर देंगे, जो 2.5 है 5/2, राइट। तो वो पूरा 14 में से 5 माइनस हो जाएगा, इट विल गिव मी 9 mm, ठीक है। तो आई हैव एवरीथिंग। सिलिंड्रिकल पोर्शन जो है उसके लिए मेरे पास रेडियस है 5/2 और हाइट है 9 mm, टोटल माइनस रेडियस ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। और हेमिस्फियरिकल पोर्शन के लिए आई हैव एवरीथिंग अगेन, रेडियस ही चाहिए उसके लिए विच इज़ 5/2 सेंटीमीटर। पाई हमें 22/7 ही यूज़ करना है, कुछ दिया नहीं है, तो लेट्स मूव। सो द सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड विल बी CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 times CSA ऑफ अ हेमिस्फीयर। सो दिस इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर इज 2πRh और इसका होगा 2πr² इंटू 2 मतलब 4πr²। दिस इज इक्वल टू 2πr कॉमन h प्लस 2r। दिस गिव्स मी 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2 इंटू हाइट इज 9 लेना है, 14 नहीं लेना है। प्लीज़ डोंट मेक दैट मिस्टेक। हमने सिलेंडर का हाइट अलग से फाइंड किया है, 14 हमें पूरे के लिए दिया है। So 9 plus 2 into 5/2 which is equal to 22, 2 into 22 into 5/7 into 2 into bracket, this will give me 14. So 7 1s are 7 2s are 2 2 cancelled. I get 44 into 5 which is, this is equal to 220 mm square. मेक श्योर कि आप यूनिट्स सही लिख रहे हो, जो क्वेश्चन में मैंशनड है वही लिख रहे हो। प्लीज़ डोंट मेक दैट मिस्टेक, वो गलत हो जाएगा आंसर। नाउ लेट्स रीड आउट क्वेश्चन नंबर 7। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर surmounted by a conical top. Tent is in the shape of a cylinder mounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 and 4, height is 2.1 and radius or diameter is 4, so radius is 2m.
2 meters. And the slant height of the top is 2.8. दे दिया है, slant height आपको फाइंड नहीं करना पड़ेगा. फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज. कैनवस मतलब जो कपड़ा यूज़ किया है ये टेंट बनाने के लिए, वो कितना यूज़ हुआ होगा उसका एरिया फाइंड करना है. ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस फॉर द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वेयर. 1 मीटर स्क्वेयर का रेट है इस कैनवस का 500 रुपीज़, तो हमें टोटल उसका फाइंड करना पड़ेगा. तो सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे. हमारे पास सब कुछ है, सी एल है, आर है, एच है, तो वी सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला जैसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट. अब ये भी ध्यान रखना है कि जो कैनवस यूज़ होता है टेंट बनाने के लिए वो बेस पे नहीं यूज़ होता है. TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट इज CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर. कोन का CSA है πRL, सिलेंडर का CSA है 2πRH. सो दिस गिव्स मी πR कॉमन L प्लस 2 इंटू H which is equal to 22/7 into radius is 2 into bracket 2.8 plus height is 2.1 उसका 2 times 4.2. This gives me 22/7 into 2 into 2.8 plus 4.2 gives me 7. So 7 cancelled, I get this as 44 मीटर स्क्वेयर. तो कैनवस यूज होता है 44 मीटर स्क्वेयर का. 44 मीटर स्क्वेयर इज द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड. तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस कैनवस? 1 मीटर स्क्वेयर का कॉस्ट इज 500 रुपीज़. 1 मीटर स्क्वेयर कॉस्ट रुपीज़ 500. मतलब हमें लिखना कैसे होगा कि द कॉस्ट ऑफ कैनवस इज इक्वल टू रेट ऑफ कैनवस इंटू एरिया दैट इज यूज्ड, दैट इज 500 इंटू 44 which gives me 2200 rupees. Are we clear? After solving these many questions, I am simply going to explain you कि क्वेश्चन 8 और 9 में क्या करना है. आपको खुद ट्राई करना है. नहीं समझ में आता है, आपको नोट्स दिए हैं उसमें पूरा सोल्यूशन है, बट आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ ट्राई करो. कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कैलकुलेशंस हैं. चलो क्वेश्चन 8 में समझते हैं क्या है. कि ये अज्यूम करो कि ये पूरा ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, उसमें से इतनी कैविटी उन्होंने कोन का मेजरमेंट जितना निकाल दिया, तो बचता क्या है? एक तो उसका टॉप खाली हो गया बिकॉज इट इज़ रिमूव्ड इन एज द बेस ऑफ द कोन, और बचा नीचे का एक बेस और CSA ऑफ सिलेंडर और प्लस CSA ऑफ द कोन. इफ़ यू चेक आउट द सरफेस, दिस हैज़ गॉन, द टॉप हैज़ गॉन, इतना पोर्शन बच गया. तो जितना मैंने हाईलाइट किया है दैट इज़ द सरफेस एरिया. तो दिस इज़ द सरफेस एरिया ऑफ कोन और दिस इज़ द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस द सरफेस एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर. तो योर कैलकुलेशन शुड बी CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस. इतना अपने आप ट्राई करो. सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला डालने हैं. सिलेंडर का फॉर्मूला 2πRH, कोन का फॉर्मूला πRL और एरिया ऑफ बेस इज πR स्क्वेयर. L भी आपको दिया नहीं है, L नहीं दिया है, आपको हाइट दिया है और रेडियस है. यूज दैट मेथड टू फाइंड L. एक बार ट्राई करो, नहीं होता है तो आई विल गिव द वीडियो सोल्यूशन टू यू आफ्टर दिस चैप्टर. पर एक बार ट्राई करो, कमेंट्स में जाके लिखना कि मैम हो गया नहीं हुआ. आई वांट टू सी कि हाउ यू डू इट. ओके, चल नाउ गोइंग ऑन टू द 9th वन. अगेन वेरी सिंपल. सिलेंडर है और अंदर 2 हेमिस्फीयर्स खाली कर दिए हैं, उतना पार्ट निकाल दिया है. सॉलिड सिलेंडर है तो एरिया बचता कितना है? इतना एरिया बच जाता है. तो यू हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. मतलब दैट्स इट. आई वुड लाइक यू टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 8th एंड 9th. नहीं होता है तो कमेंट्स में जाके लिखो. आई विल सी ऑल द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू कम अप विद अ वीडियो सोल्यूशन. बाकी नोट्स में तो आपका सोल्यूशन है ही. फिर भी नहीं आता है, अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो ओपन द PDF, ओपन द नोट्स एंड ट्राई टू टेक द रेफरेंस. ठीक है,
In the next video, we are going to cover the examples related to volumes of combination of solids, that are example I think 5, 6, 7 and question 1 to 4 of the next exercise. उसके बाद के वीडियो में, लास्ट वीडियो में remaining questions of exercise 12.2. So yeah, that's it for today from my side. इतना आपको try करना है. Keep exercising, keep learning, keep revising.